Yes, Prajo. Ah, yes, it is available on YouTube. I will send you that link. You just WhatsApp me. I will send you the link. Right. Okay. Okay. So for today, we will complete the remaining discussion about C execution life cycle. जो हमने कल देखा था C execution life cycle that we will discuss. Is screen visible? Okay. So in the last lecture we discussed about one flow chart. That flow chart is nothing but the process of compiling and running a C program. Now, when we are talking about the C program, there are stages and steps that we have to, with the help of that, we can reach to the output. So first thing is that when we have to write down the program, we must have to know, or we must have to acknowledge that what kind of a program that we want to write, और what kind of things that we want to perform by that particular program. उसमें कैरेक्टर बेस डेटा डील करने वाला है, या फिर इंटीजर बेस रहेगा, या फिर फ्लोट बेस रहेगा, या फिर डबल रहेगा. मीन्स जैसे आपका सी का और जे का स्कोर रहता है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम डबल एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं, rather than if you're talking about the value of pi, that is 3.14. तो 14 के बाद में हम जनरली वैल्यू कंसिडर नहीं करते, so that value is considered as a float value. So when we are talking about this terminologies about execution of a C program, so that execution is having a sample C program, or the source program, we can say that. Source program can be editable, then it will be compiled with the help of some commands, और डायरेक्टली वी कैन कंपाइल विद द हेल्प ऑफ सम GUIs. जैसे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं टर्बो सी के रिलेटेड, जिसमें आप डायरेक्टली कुछ शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हो, या फिर कंपाइल नाम की एक बटन रहती है फाइल मेन्यू के साथ में. इफ़ यू वांट टू कंपाइल इट, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इट. अदरवाइज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके रिलेटेड तो दिया है नीचे. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कमांड्स हम यूज़ करते हैं, that completely given in our description, that the two most popular operating systems today are Unix for mini computers and MS-DOS. MS-DOS means Windows. ठीक? So for a microcomputer, right? Can anyone tell me that what is the difference between a mini computer and microcomputer? First unit. Right, exactly. So on the basis of this particular line, we can say that the major difference is, if we are talking about the Unix operating system, it is quite secure, plus that can perform a multi-user functionality, whereas the MS-DOS, it requires a antivirus, as well as one person can perform a multiple operations on a single system, and it will not allow you to perform the multiple options or multiple functionalities with the help of a network. So network उसमें उस टाइम पे इनहेरिट नहीं किया था. ठीक है. Later on it will be added in the next versions of विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ 98 थी, विंडोज़ 2000, उसके बाद फिर उसमें ऐड होता गया, और एंड नाउ विंडोज़ कैन परफॉर्म एवरीथिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिक्योरिटी. Security is not up to that much in comparison with the Unix, right? So we will see today source program. Source program के बाद हमने देखा था कि object code that can be formed. Once the program is compiled, it will check the errors. If the error is there, then it will go back to the edit section, edit the source program,
otherwise it will enter into the system library section. सिस्टम लाइब्रेरी यानी क्या, तो ये एक ऐसा स्टोरेज यूनिट है. दैट स्टोरेज यूनिट will provide the necessary data to the program so that the program in which the multiple functions, multiple things, multiple instructions, whatever you have written, that will be acknowledged by the system. सीधे सीधे हम अगर बोलते हैं तो एक मैनुअल है जो हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप परचेस करते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो उसके साथ एक मैनुअल का बुक आता है. ठीक है. इवन इफ यू परचेज द कार, इफ यू परचेज द टू व्हीलर बाइक, उसके साथ भी मैनुअल का एक बुक आता है कि उसके स्पेसिफिकेशन, उसका इंटरनल स्पेसिफिकेशन, एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशन, वो सारा का सारा उस पर्टिकुलर मैनुअल में रहता है. ठीक है. तो इट इज जस्ट वन गाइड, राइट. तो उस गाइड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको बहुत से ऐसी चीज़ें उसमें से पता चल सकती है. सिमिलरली सिस्टम लाइब्रेरीज आर nothing but the one which is having a large data of instructions and उसके मीनिंग, इंस्ट्रक्शंस का डेटा है उनके पास और उसके रिलेटेड मीनिंग्स भी है उसके. जैसे अगर मैं हैश इंक्लूड लिखता हो तो हैश का, इंक्लूड का, stdio.h का मीनिंग क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या परफॉर्म करेगा, क्या फंक्शनैलिटी है, दैट एवरीथिंग इज रिटन इन अ सिस्टम लाइब्रेरी. दैट्स व्हाई दे कॉल इट एज अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी हम किसको बोलते हैं कि जहाँ पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है. बुक्स है इसका मतलब क्या है, डेटा है. डेटा यानी इन्फॉर्मेशन. करेक्ट. अगर आपके पास आपकी खुद की छोटी सी एक लाइब्रेरी होंगी तो उसमें 10-20 भी अगर बुक्स हैं, ठीक है, तो दैट इज़ इनफ. बिकॉज एक बुक में बहुत सारा डेटा रहता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है. एंड वी हैव 20 बुक्स, दैट मीन्स इट इज़ अ ह्यूज डेटा. सो सिस्टम लाइब्रेरी दैट विल बी लिंक विथ द ऑब्जेक्ट कोड. जो भी ऑब्जेक्ट कोड बना है कंपाइल होने के बाद उसके साथ वो लिंक होता है. एंड देन इट विल फॉर्म अ एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड विच इज़ नोन एज अ exe. डॉट exe जो हम देखते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट नथिंग बट द एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड. नाउ दैट exe will demand the input data from the user or from the program, right. जैसे हमने कल प्रोग्राम देखा जिसमें जिसमें हमने देखा था कि एक मैसेज प्रिंट करना था, सिंपल मैसेज. ठीक. अब सिंपल मैसेज प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोग्राम है, इसको हम रन करते हैं तो आपको सिंपल मैसेज मिल जाएगा, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, ये मैसेज मिल गया. ठीक. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट डेटा, राइट, तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, इट इज ट्रीटेड एज अ इनपुट डेटा. इसको आप एडिट कर सकते हो, उसको उसमें आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हो, बट इट शुड बी लाइज इन बिटवीन द these two semicolons. Now these two yes, these two, इसको क्या बोलते हैं, double quotes. That double quotes, inside that double quotes we have to write it down a hello world. अगर आपको कुछ उसमें अल्टरेशन करना है, उसको चेंज करना है, then we can do it, but that double quotes should be there, right. So with the help of that input we will get the desired output here on a online gdb.com. So if there is a wrong input like this, you just have to put a blank. अगर हमने blank करना चाहा और उसको रन कर दिया, यानी यहाँ पे आउटपुट आया कि नहीं आया, कोई बता सकता है, एनीवन? प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम, एग्जीक्यूट हुआ, बट इसमें जो डेटा इनपुट दिया है हमने वो ब्लैंक है, और ब्लैंक यहाँ पे शो नहीं होती, शो भी की होगी उसने बट वो दिखती नहीं है. ठीक है. सो इफ यू टाइप एनीथिंग इनसाइड इट and then we will run,
so it will execute, so it will show the output, right? So with respect to the inputs given to the executable object code, program will execute it and will formulate a correct output. So that we will done with the help of a executable object code, right? Then yes, exact करेक्ट इनपुट है, करेक्ट डेटा है, तो अपने को पता कैसे चलेगा, करेक्ट? सो इट विल बी जस्ट लाइक, यहाँ पे क्या था पहले, हेलो वर्ल्ड था, ठीक है? अब मैं यहाँ पे हेलो लिखता हुआ, ठीक है? कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो आप कि इसमें कलर कॉम्बिनेशन में भी चेंजेस हो चुके हैं, दैट हेलो वर्ल्ड इज ग्रीन and this simple hello is white color, right? Then I will execute it, so it will only print hello world, right? हमने आगे का जो हेलो दे दिया था उसने वो निगलेक्ट कर देना चाहिए, दैट वाज आवर एक्सपेक्टेशन, राइट? बट व्हाट हैपन, इट गिव्स यू द एरर, राइट? उसने आपको क्या दिया, एरर दिया, और एरर क्या है, एरर एक्सपेक्टेड, सिंगल कोट में उन्होंने एक ब्रैकेट दिया है, बिफोर हेलो, राइट? ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के पहले जो हेलो है उसका उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया कि ये पर्टिकुलर वर्ड है, यहाँ पे एरर है, ठीक है? तो अगर आपका सिंटैक्स गलत होता है, ठीक है, तो इट विल शो द एरर एज पर दिस डायग्राम, एज पर दिस फ्लो चार्ट, कि मैंने प्रिंटफ का जो सिंटैक्स था वो गलत लिख दिया, तो उसने क्या कर दिया, मुझे वापस भेज दिया एरर देख के, सिंटैक्स एरर क्वेश्चन मार्क, डायमंड ब्लॉक क्या शो करता है, आइदर और, अगर सिंटैक्स एरर है तो वो यस करके सोर्स कोड को एडिट करने के लिए चला जाएगा, सोर्स प्रोग्राम को एडिट करने के लिए, अगर नो है देन ऑब्जेक्ट कोड विल बी क्रिएटेड, दैट विल बी लिंक विद द सिस्टम लाइब्रेरी। तो यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक ज़्यादा का हेलो लिख लिया तो उसने एरर दे दी, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन है इंटीजर मेन, इसका एम कैपिटल करता हूँ, देन आई विल कंपाइल द प्रोग्राम। Compilation failed due to the following errors. The reallocation 0 has invalid symbol, index 11, and reallocation 1, 2, 3, 4 up to so on 19, और उसके बाद फिर से 0। बहुत सारी एरर्स उसने दे दी हैं। ID रिटर्न 1, एग्जिट स्टेटस, ये नीचे लिखा हुआ है रेड कलर। तो एक M को मैंने सिर्फ स्मॉल केस में था, उसको कैपिटल केस में कन्वर्ट क्या कर दिया, आपको इतनी सारी लगभग 25 20 30 एरर्स, 20 21 एरर्स उसने बता दी, ठीक है? ये भी बता दिया कि यूज़र में बिन में 86 में 64, ये 64 क्या है, 64 इज़ अ बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ अ 64 बिट। उसका लिनक्स में GNU जो ID है वो पूरा पाथ वो बता रहा है, इन्फो बता रहा है, और वहाँ पे क्या बता रहा है, वो इनवैलिड है, मेन क्लास आपका इनवैलिड है, वो सही करो आप, ठीक है? तो मैंने उसको कैपिटल से स्मॉल कर दिया। अब गलती से अगर पहला लेटर ये मैंने इंटीजर का आई कर दिया, ये सब सिंटैक्टिकल एरर है, सिंटैक्स गलत हो गया एरर दे देगा, ठीक है? इंटीजर का मेन, तो एक एरर आ गई, अननोन टाइप नेम INT। तो सिस्टम लाइब्रेरी, ये जो वर्ड है या फिर ये जो कंसेप्ट है वो यहाँ से हमको समझ में आता है। यहाँ पे उसने क्या बोला, अननोन टाइप नेम, यानी ये किसके लिए अननोन है, सिस्टम के लिए अननोन है। ये जो कैपिटल आई और उसके बाद INT, ये हमको तो पता है कि ये इंटीजर है, किसी को भी पूछा तो वो बता सकता है कि ये इंटीजर है, ठीक? बट सिस्टम डोंट नो अबाउट कैपिटल INT, सिस्टम नो ओनली स्मॉल केस INT। तो जो सिस्टम लाइब्रेरी है उसके साथ जब लिंकिंग होता है तो वो चेक करता है कि वेदर इट इज़ राइट और नॉट, ठीक है?
तो प्रायर टू दैट इफ देर इज अ रॉन्ग सिंटैक्स, इवन इफ इंक्लूड की जगह पे stdio.stdio, बहुत से बार क्या होता है stdio.h का जो हमारा स्पेलिंग है हम उसको गलत लिखते हैं, तो सुनने में भी गलत आता है और पढ़ते टाइम पे हम गलत उसको पढ़ते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं studio स्टूडियो studio.h, ठीक है। अब फिर से वो बताएगा कंपाइल करके, सिंटैक्टिकल एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कंपाइलेशन टर्मिनेटेड। जहाँ पे एरर है वो खुद वो कंपाइल करके बताता है कि यहाँ पे एरर, ठीक है। तो वी विल डू दैट मल्टीपल एरर्स, फिर पता चलेगा हमको कि आगे आगे क्या होता है। तो दो तीन जो भी चीज़ें हमने की है वो सारी की सारी हमने ऐड कर दी, ओके, एंड देन वी विल कंपाइल इट। तो उसने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे एरर दे दी, मगर हैश इंक्लूड stdio.h पे एरर दे दी, मगर उसने बचे हुए जो भी इंटीजर मेन है, आई कैपिटल है, हेलो वर्ल्ड, ये HELLO, यहाँ पे एरर नहीं दी। इसके रिलेटेड कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? एनी गेसेस, एनीवन? Exactly. If it is a structured language, so it means that a stepwise execution should be there. But वो stepwise execution रिटर्न जीरो से स्टार्ट होता है कि हैश इंक्लूड मेन, हैश इंक्लूड stdio.h उससे स्टार्ट होता है? इसके लिए एक अप्रोच कंसिडर किया गया है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। टॉप डाउन यानी टॉप से डाउन तक हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे वन बाय वन सिंगल लाइन, ठीक। और बॉटम अप अप्रोच नीचे से लेके तो ऊपर तक जाएंगे, ठीक। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ द सी लैंग्वेज, इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच, उसने टॉप डाउन अप्रोच एडहर किया हुआ है। वेयर एज द लैंग्वेज लाइक अ C++, ठीक है, उसने बॉटम अप अप्रोच एडहर किया हुआ है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट रहता है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, वो सब पहले लिखा जाता है और उसके बाद नीचे मेन क्लास लिखा जाता है, इंटीजर में, ठीक है। तो उसका अप्रोच जो रहता है कि पहले इंटीजर मेन एग्जीक्यूट होगा, फिर उसमें जो जो आपने लिखा होगा डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट, उस हिसाब से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे और उसको एक्सेस करते जाएंगे। सो दैट वाज अनदर पार्ट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सी लैंग्वेज, इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। सो पहले अगर आप पहली लाइन चेक कर रहे हो, दिस आपका कंपाइलर पहली लाइन चेक कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको एरर मिल गई तो इट विल नॉट चेक द नेक्स्ट लाइन, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट योर टाइम इज सेव, ठीक है। क्योंकि वो हर एक लाइन चेक करते करते अगर जाएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि किस पर्टिकुलर लाइन पे एरर आ गई है, करेक्ट। तो वो बताने के लिए वो हर एक लाइन को चेक करता है, वो अगर ओके है तो नेक्स्ट लाइन को चेक करेगा, वो ओके है, नो एरर, देन नेक्स्ट लाइन, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी कैन इजीली गेट द एरर्स, कि जहाँ पे एरर आ गई वहाँ पे वो रुक जाता है। यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर देते हैं stdio.h, then we will execute. Now it will show the error on integer main, I जो कैपिटल है, जिसकी अलग से 20 लाइन की एरर उसने बताई थी, बट अभी फ़िलहाल वो बता रहा है कि इट इज़ अननोन टाइप नेम एंड देन हेलो, ये जो लिखा हमने एक्स्ट्रा का, उसमें वो एरर बता रहा है। यानी वो दोनों चीज़ें उसने क्या की, चेक की, इंटीजर मेन का ये भी पार्ट चेक किया और ये भी पार्ट चेक किया। नाउ वी विल सी हियर रिटर्न 0 लिखा है तो अपन रिटर्न 10 लिखते हैं, वेदर इट विल चेक और नॉट, इट विल नॉट चेक, राइट। ये जो पहले की एरर्स है वही वो कॉन्स्टेंटली आपको बताएगा, क्योंकि उसके भरोसे पे ही आपका ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। वही अगर सिंटैक्स में गलत है तो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनेगा। वो हमने हटा दिया, अब हम उसको देखेंगे कि अब क्या बता रहा है, रिटर्न 0।
के जगह पे हमने रिटर्न 10 ले लिया, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हमने इसमें पढ़ा था कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन नहीं लिखा, आपने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन भी नहीं लिखा सी प्रोग्राम में, या फिर आपने सब रूटीन या फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी नहीं लिखा, तो भी चल जाता है। बट वी हाउ टू राइट डाउन द मेन फंक्शन सेक्शन। जो मेन फंक्शन का जो सेक्शन है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जो है, वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके सिवा प्रोग्राम ही बनता नहीं, प्रोग्राम नहीं बनेगा तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट। So that was the particular importance of a main function, right? Then after, yes, डबल कोट्स नहीं, कुछ भी नहीं एरर आएगी। इवन इफ मैं यहाँ पे एक कोई भी समझो आप क्या बोल सकते हैं, कॉलेज, ये कॉलेज का स्पेलिंग है, ये सही है, करेक्ट है, COLLEG। अब गलती से मैं इसको AGE कर देता हूँ, कोलाज, कोलाज, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, प्रिंट हो गया, करेक्ट। उसके बाद इसमें मैं 0 डिवाइडेड बाय 12, अभी 0 डिवाइडेड बाय 12 कभी हो सकता है क्या मैथमेटिक्स में? आंसर इज 0। और अगर उसको उल्टा कर दूं मैं, 12 डिवाइडेड बाय 0, इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये गलत है, ये हमको पता है, मगर हमारे कंप्यूटर को या फिर कंपाइलर को वो कुछ भी नहीं पता, तो एज इट इज़ वो आपको प्रिंट करके दे देगा। सो एनीथिंग दैट यू हैव रिटर्न इनसाइड द प्रिंट एफ अंडर 2 डबल कोट्स, उन दो के बीच में आप जो भी लिखते हो, दैट विल बी एज इट इज़ प्रिंटेड, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करता हूँ, ठीक है। ये हो गया प्रिंटिंग का मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो भी लिखोगे आप वो प्रिंट कर देगा, राइट। ये हो गया इनपुट लेने के लिए। प्रिंटफ जो है वो इनपुट लेता है, और प्रिंटफ जो है वो इनपुट जो दिया हुआ है आपने वो शो करता है, ठीक है। बट इसके आगे हम देखेंगे कि अगर ये जो इनपुट शो कर रहा है तो इसको इनपुट देना कैसे। ये तो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं और वो वैल्यू जो भी प्रिंट हो रही है वो एज इट इज़ हो रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट वी विल सी नाउ। कल का हमारा क्वेश्चन था कि सी प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल, सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल, जिसमें हमने ये डायग्राम देखी थी। इस डायग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी इन द फ्लो चार्ट? कैन वी राइट, कैन वी ड्रॉ इट? हम ड्रॉ कर सकेंगे बिना देख के? सॉरी सर, आई हैव टेकन oh no problem sir, because it is related to the C language and all queries are welcome। वो तो मैं बीच बीच में खुद होके पूछता हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली पढ़ाने अगर लग जाऊँ तो हमारा कैसा यूनिट पूरे ख़त्म हो जाएंगे, और आपको कितना समझा नहीं समझा वो मुझे कुछ भी एक्नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि ये सब ऑनलाइन है, मेरे सामने कोई नहीं है। एंड दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी कि सामने कोई नहीं और हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम यूट्यूबर नहीं है ना। यूट्यूब के आपके मेरे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, उसमें बाकी यूट्यूबर के कंपैरिजन में बहुत ही लैगिंग है वो। मुझे खुद को रियलाइज़ होता है कि क्या करना चाहिए अपन ने, तो वो सीखना चाहिए कि जो हमारे करंट चल रहा है वो सीखना चाहिए। तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रहता मेरा, जो भी हम पढ़ाते हैं पढ़ते हैं वो एज इट इज़ मैं वहाँ पोस्ट कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, राइट, जो भी रिकॉर्डिंग होता है। सो नो वरी,
n number of questions are welcome, because with that I acknowledge that कि किसी को अगर क्वेश्चन आता है, इट मीन्स दैट वो क्वेश्चन बाकी को भी आता है, 5-10 लोगों को, बट वो पूछते नहीं। मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं भी नहीं पूछता था, मगर आजू बाजू का कोई ना कोई पूछ लेता था, जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्टी मुझे रहती थी और मेरी भी सॉल्व हो जाती थी ऑटोमेटिकली। सो इफ़ एनीवन वांट टू आस्क द क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन इंटरप्ट इन मिड टाइम, नो प्रॉब्लम। मैं आपको इमीडिएटली उसका आंसर बता दूँ, क्योंकि आगे जाके वो कन्फ्यूजन रहने से अच्छा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आगे के टॉपिक्स मूव ऑन होते हैं, और वही अगर नहीं समझा है या फिर उसमें कुछ इश्यूज है तो आगे भी लिंक नहीं लगती। ठीक, तो नो प्रॉब्लम। सो दिस डायग्राम, दिस फ्लो चार्ट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन? एनी पॉइंट दैट वी वांट टू आस्क एनीवन? नो, नो वन? So shall I ask some questions to you randomly on the basis of that diagram? Am I audible? Am I audible to everyone apart from Sarvesh, Gokul? हाँ, ओके ओके ओके। मुझे लगा कि सिर्फ इनको ही आवाज़ जाती है। सर, इज दिस चार्ट आस्क इन एग्जाम? नो, you should have to ask me the question, is this question will ask in the exam, right? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है उनमें, then we have to write that particular chart or not, that should be the question, right? So when we want to explain that particular part of C programming execution, ठीक है, sometimes your sound fluctuates due to, okay okay, network problem, okay okay, no problem चेतन। हाँ, कभी कभी होता है, आवाज़ अल्टर हो जाता है, उसकी वजह से क्लियर वॉइस नहीं आता है, करेक्ट। तो ये जो सी एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल यानी क्या बोलते हैं हम? नेचर की लाइफ साइकिल, देन बायोडाइवर्सिटी की लाइफ साइकिल, या फिर एनिमल की लाइफ साइकिल, पेड़ पत्तों की लाइफ साइकिल, ट्रीज़ की लाइफ साइकिल। छोटा सा बीज रहता है, उसमें से ट्री ग्रो होती है, फिर पत्ते गिरते हैं, उसका भी यूटिलाइजेशन होता है। तो ये जो लाइफ साइकिल जो चीज़ है, उसको हम एक फ्लो चार्ट में कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी वही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि स्टार्टिंग विथ अ कोड, सैम्पल कोड और द सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड लिया गया पहले, उसके बाद उसको कंपाइल किया गया। जो लेफ्ट में जो दिया हुआ है ना, प्रोग्राम कोड, सी कंपाइलर, सिस्टम लाइब्रेरी, ये फिलहाल छोड़ दो आप, ठीक। जो स्ट्रेट में है सिस्टम रेडी, एंटर द प्रोग्राम, वहाँ से स्टार्ट करो। सिस्टम रेडी, देन एंटर द प्रोग्राम, देन देर इज अ सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम दैट शुड बी एडिटेबल। ये हमारा बीइंग एज अ डेवलपर, बीइंग एज अ प्रोग्रामर, ठीक। अगर आपको बोला गया है, एक टास्क दिया गया है कि बिना देख के आप प्रोग्रामिंग करो, क्या करो? बिना देख के प्रोग्रामिंग करो। सो इज इट पॉसिबल? एनीवन? प्रश्न समझ ला, मेरा सवाल समझा है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ? आपको अगर बोला गया है कि आपको प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, और जो स्क्रीन है वहाँ पे जो भी आप टाइप कर रहे हो वो नहीं दिखने वाला है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड प्रोग्रामिंग, ब्लाइंड सी। तो इज इट पॉसिबल? नो। आज अब बोल रहे हैं, आज की तारीख है 24 मार्च, ओके सिमरन, नो। 24 मार्च है आज की तारीख। 24 अप्रैल जब रहेगी, ठीक है, 24 अप्रैल जब रहेगी यानी 1 महीने के बाद, तब सेम क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि अभी आप कर सकते हो क्या, ब्लाइंड सी से एक आधा प्रोग्राम लिख सकते हो क्या सी का? एंड ऑन दैट डे डेफिनेटली 20 और 25 स्टूडेंट्स
will say that yes sir we can do it. ठीक है, so let's take a challenge of this, how we can type a program without seeing what we are typing. हमको पता ही नहीं हम क्या टाइप कर रहे हैं, बट टाइप कर रहे हैं हम. ठीक है, जस्ट लाइक दैट पासवर्ड. पासवर्ड हम टाइप करते हैं तो हमको दिखता है क्या? अगर उसका जो हाँ, या वो एक बटन रहती शो पासवर्ड की, और उसके बाद हम उसको देख सकते हैं. बट जनरली व्हेन वी आर लॉगिंग टू रेगुलर जीमेल अकाउंट और फेसबुक और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, रेगुलरली जिसमें हम लॉगिन करते हैं या फिर लॉग आउट करते हैं. जनरली फेसबुक को हम लॉगिन एक बार कर दिए, ऐप रहता है तो ऐप में वो ऑलरेडी रहता है, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं जाती. ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, we know the password, so just because of that we type it quickly. और सिस्टम का पासवर्ड जो भी आपके सिस्टम है या फिर मोबाइल है, उसका जो पिन है, पैटर्न है, जो भी है, वो हम इजीली उसको ऑपरेट करते हैं. वाई इट इज सो? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस. डे टू डे हम उसको यूज करते हैं, इसलिए वो याद हो जाता है. सिमिलरली व्हेन वी आर डीलिंग विद द सी प्रोग्राम, और रेगुलरली हम उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे, देन we will reach up to the one point that we can write basics. बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करनी है, 5-6 पेज का अगर प्रोग्राम लिखना है, ऐसे मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता और आप भी मत रखो. ठीक है, बिकॉज सी लैंग्वेज, सी फंडामेंटल, हमारे बुक का जो नाम है, जो हमको प्रिस्क्राइब की है यूनिवर्सिटी ने, उसका नाम ही है कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स का मीनिंग क्या होता है? बेसिक. एंड सी प्रोग्रामिंग, उसमें एडवांस लेवल कहीं पे भी नहीं है. तो हम बेसिक से ही डील करेंगे, so that we can reach up to that particular basics of a C program. So वहाँ तक हम जब पहुँचेंगे एक महीने के बाद, तो definitely out of 65, definitely 25 to 30 students can manage to write the C program without looking to the screen, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ दिखेगा ही नहीं, और उसको एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट जो है वो सबमिट हो जाता है. सो दैट वाज अ टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स दैट विल बी हेल्ड इन वेरियस कंपनीज. ये भी होता है. ठीक है, कंपनीज के जो प्लेसमेंट रहते हैं, वहाँ पे ब्लाइंड सी नाम का एक हर्डल रहती है, या फिर उसको एक टेस्ट हम बोल सकते हैं, कि आपको दिया जाता है ऑब्जेक्टिव, यानी आपको ये एग्जीक्यूट करना है, ये प्रोग्राम करना है. जैसे सिंपली मैं बोलता हूँ कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये टारगेट दिया गया आपको. राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग अ सी लैंग्वेज, ये आपको टारगेट दिया है, एंड दैट वी हैव टू राइट इट डाउन. तो जो स्क्रीन रहेगी वो टोटली ब्लैक रहेगी, वी जस्ट हैव टू टाइप इट. अगर कहीं गलती होगी, स्पेलिंग गलत हो गया, तो वो दिखेगा नहीं. ठीक है, तो वो आपको खुद को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने कितने लेटर्स टाइप किए और कितने लेटर्स बैक स्पेस किए या फिर डिलीट किए. तो दैट प्रैक्टिस will be done by all of you till the 24th April. ठीक है, एक महीने का हमारा टारगेट है वो. तब तक के मैक्सिमम लोगों को आ जाएगा, यानी 50% लोगों को आ जाएगा. ठीक है, so when we are talking about a C program or their execution life cycle, source program, then object code, which is important. but object code कैसे बनेगा? जब आप कंपाइल करोगे. ठीक, and after compiling object code will be linked with the system library, and then it will generate the executable object code. उसके नाम में ही है executable, यानी जो एग्जीक्यूट होता है. एग्जीक्यूट होना यानी क्या? तो जो भी डेटा उसको दिया गया है उसको प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट करने के पहले की प्रोसेस. आउटपुट जनरेट तभी होगा जब इनपुट दिया जाएगा, और इनपुट दिया जाएगा एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड को. तो इट इज़ इन अ रेडी स्टेट, उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेडी स्टेट. जैसे ही इनपुट मिल गया, आउटपुट दे देगा. राइट, अगर आप बाइक पे बैठे हो, बाइक स्टार्ट की है, और जैसे आपको सिग्नल मिल जाता है कि रेसिंग वगैरह है, तो जैसे आपको सिग्नल मिल जाता है आप उसको भगाते हो. ठीक है, या फिर रनिंग, रनिंग में भी वैसे ही होता है. सो एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड इज जस्ट, इट इज़ रेडी टू रन द पर्टिकुलर डेटा.
जो भी इनपुट दिया जाएगा उसको वो रन करने के लिए तैयार है। सो दैट इज व्हाट है एग्जीक्यूटेबल कोड। एंड उसमें दो चीज़ें चेक होगी, दैट इज द डेटा एरर एंड द लॉजिक एरर। बोथ will be checked, and if there is no error then it will give the correct output. And how we acknowledge the that correct output will be generated? If there is a no red line in your output, आपके आउटपुट में कहीं पे भी कोई भी रेड लाइन नहीं है, सिंपल आउटपुट दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, देन एंड देन वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट आउटपुट, राइट? नाउ an operating system is a program that controls the entire operation of a computer system that we know. We just gone in a that particular part of operating system. Operating system का role ही वही है, so that it controls all the operations. All input output operations are channeled through the operating system. Operating system, which is an interface between the hardware and the user, handles the execution of the user programs. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? इंटरफेस है यानी मीडिएटर है इन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर, एंड इट विल हैंडल ऑल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ यूजर प्रोग्राम्स। जो भी हम कमांड्स या फिर जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे मैं अभी वर्ड एक्सेस कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट? तो उसमें मैं अपवर्ड डाउनवर्ड ये बटन यूज़ कर रहा हूँ और उसके हिसाब से वो जो कर्सर है, एरो है, ठीक है, पॉइंटर है, ठीक है, वो मूव हो रहा है, राइट? So that was a particular operation, and that will be executed by the operating system, right? Then the two most popular operating systems that are today means when the book was published, at that time Unix and MS DOS. तो उसमें से यूनिक्स तो आज भी पॉपुलर है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उसमें एंटीवायरस रिक्वायर्ड नहीं है, हैकिंग नहीं हो सकता है, लगभग 99.99% यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर नॉट हैक, राइट? अभी रिसेंटली इसरो ने एक टेक्निक डेवलप की है, कल की न्यूज़ थी, विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक हैकिंग इज और साइबर अटैक्स दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। यानी सामने वाले कोई भी अगर साइबर अटैक करता है हमारे सिस्टम के ऊपर, तो उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से। सो दैट वाज अ पर्टिकुलर न्यूज़। देन एम एस डॉस जो है वो अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं होती, एम एस डॉस कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी बहुत कम है, स्पीड भी बहुत कम है, और उसमें आपको जो टाइम एंगेज करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है? तो दैट वाज अ पर्टिकुलर पार्ट। देन क्रिएटिंग द प्रोग्राम, ये हमारा पहला स्टेज था इन द लाइफ साइकिल। सो एज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इफ यू कंपेयरिंग, ठीक है, तो जो भी कंटेंट अभी इसके आगे हम देखने वाले हैं दैट आर कम्प्लीटली रिलेटेड विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? क्योंकि यूनिक्स एंड लिनक्स ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो कमांड बेस हैं। अगर आप कमांड टाइप करते हो कंसोल विंडो पे, जो भी परफॉर्मर विंडो है जहाँ पे हम एग्जीक्यूशन चाहते हैं, इन दैट पर्टिकुलर पार्ट वी हैव टू टाइप द ईच एंड एवरी कमांड। जैसे हमने पिछले बार देखा था सी एम डी। सी एम डी का फुल फॉर्म किसी को पता है? एनीवन? सी एम डी, एम आई ऑडिबल? सी एम डी स्टैंड फॉर अ कमांड प्रॉम्प्ट, वो ऊपर ही लिखा है यहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है? तो सी एम डी में हमने एक लास्ट टाइम में देखी थी कमांड आई पी कॉन्फिग। जैसे आई पी कॉन्फिग किया तो वो सारा डेटा दे रहा है इंटरनेट के रिलेटेड, नेटवर्क के रिलेटेड, ठीक है, मेरा आई पी एड्रेस वगैरह सब दे रहा था, ठीक है? देन एम के डी आई आर एंड आर एम डी आई आर, ये भी हमने कमांड्स देखी थी। एम के डी आई आर से डायरेक्टरी मेक होती है यानी बनती है, और आर एम डी आई आर से डायरेक्टरी रिमूव होती है, ठीक है? सो दीज आर द सम कमांड्स। उसके अलावा भी है डब्ल्यू एल एस कमांड है, लिस्टिंग ऑल, बाद में सी डी कमांड है, चेंज डायरेक्टरी, सी डी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। ऐसे बहुत सी यूनिक बेस्ड कमांड्स हैं
जो हम विंडोज़ पे भी यूज़ करते हैं CMD में, जो डॉस बेस एप्लीकेशन है। ठीक है, CMD यानी एक कंप्लीट डॉस बेस एप्लीकेशन है। अभी जो हमारे सिस्टम में हमको ये जो GUI दिखता है पूरा का पूरा, लाइक दिस, ये जो GUI आपको दिख रहा है, ये जो आइकॉन्स है, ये सब जो दिख रहा है, so that was not possible at the time of a DOS based operating system. We have a one complete black window like a CMD, and where we have to type the particular commands, and then the application will run. Right, double click से कुछ नहीं होता था, only we have to use the commands. Right, so creating the program, how we can create the particular program in the case of Unix. Once we load the Unix operating system into the memory, the computer is ready to receive the program. ये एक थोड़ा सा पार्ट हम फास्टली लेंगे क्योंकि ये विंडोज़ के रिलेटेड नहीं है, ये यूनिक्स के रिलेटेड है, और उसके कंपैरिजन में हमको विंडोज़ का पार्ट कंसिडर करना है। यूनिक्स के कंपैरिजन में विंडोज़ का पार्ट कंसिडर करना है। ठीक, द प्रोग्राम मस्ट बी एंटर्ड इनटू अ फाइल, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, या फिर आप डायरेक्टली .c एक्सटेंशन देके उसमें भी आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। द फाइल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अ लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स फॉलोड बाय अ डॉट एंड अ लेटर सी। यानी जो भी आप फाइल में डेटा या फिर प्रोग्राम लिखना चाहते हो, दैट फाइल नेम शुड बी लाइक दिस, हेलो डॉट सी। डॉट सी एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो सी से रिलेटेड करता है। अगर डॉट सी देते हो तो सारी की सारी सिस्टम लाइब्रेरीज उसके लिए अप्लीकेबल हो जाती है। सभी की सभी नहीं आ जाती, बट अप्लीकेबल हो जाती है जितनी आपने आपके प्रोग्राम में यूज़ की होंगी। बाद में हम उसको प्रोग्राम सी भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम वन सी भी लिख सकते हैं, यानी उसमें कैरेक्टर भी चलता है, डिजिट भी चलते हैं। ठीक है, द फाइल इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एन टेक्स्ट एडिटर, आइदर ईडी और वी आई। अब ये जो ईडी मीन्स एडिट एंड वी आई, तो ये वी आई एडिटर है, ये हम यूज़ करते हैं यूनिक्स में। अगर हमको वही चीज़ अगर परफॉर्म करनी है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे टी ई एक्स टी, यहाँ पे नोटपैड हम ओपन करते हैं डायरेक्टली। विंडोज़ में हमको कोई ज़रूरत नहीं कमांड्स वगैरह फायर करने की, डायरेक्टली हमने नोटपैड ओपन किया, उसको जो भी लिखना है, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h void main opening brackets integer a comma b comma sum, then यहाँ पे a equals to 10 comma b equals to 12, then sum equal to a plus b semicolon, printf sum equal to percent d double quotes comma sum क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये एक सैम्पल प्रोग्राम है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें है वो हम डिटेल में देखेंगे, बट राइट नाउ वी जस्ट हैव टू कंसिडर दैट इट इज़ अ सैम्पल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अगर हमको एग्जीक्यूट करना है तो डॉट सी से हमको इसको सेव करना पड़ेगा और उसको कंपाइल करना पड़ेगा, राइट। बट यही प्रोग्राम हम अगर टर्बो सी में एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका खुद का एक कंसोल विंडो रहता है, टाइप एडिटर रहता है, उस एडिटर में हम उसको टाइप करेंगे एंड इट विल डायरेक्टली रन और कंपाइल और डिबग, राइट। ऑनलाइन जीडीबी अगर हम यूज़ करते हैं, जो अभी हमने इसके पहले भी देखा है, ऑनलाइन जीडीबी, यहाँ पे भी रन डिबग ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर स्क्रीन है ये टोटल है एडिटर, जिसमें हाँ आपका सोर्स कोड या फिर सोर्स प्रोग्राम टाइप कर सकते हो, रन करोगे तो वो रन होगा, आउटपुट आपको जनरेट करके देगा, राइट। तो व्हाट दे आर सेइंग, यस, actually debug is the process in which we will check, means compiler will check each and every line written in the program
and find out the error in that particular line. So इसको हम शॉर्टकट में ये बोल सकते हैं checking the errors line by line. That is the debugging. नहीं, अब यहाँ पे उन्होंने दो प्रोसेस इसलिए दिए है, रन करना यानी क्या, रनिंग द पर्टिकुलर प्रोग्राम, दैट मीन्स in a one shot, in a complete one shot, it will check and it will give the 10 errors. करेक्ट. क्या करेगा वो, रन जब करेगा और आपके प्रोग्राम में अगर समझो 20 लाइन्स हैं, 20 लाइन्स में से 10 लाइन्स पे एरर है, वो आपको दे देगा. फिर आपको एक फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन की एरर जो है वो देखते जाना पड़ेगा. ठीक है. एरर कहाँ पे मिलेगी आपको, इस पर्टिकुलर पैनल में मिल जाएंगे एरर. ये जो पैनल दिख रहा है आपको, जैसे मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल होने के बाद जो स्क्रीन अपेयर होगी, ये पूरा का पूरा, यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, एरर. ठीक है. 10 एरर्स अगर आपको दिखती है तो उसमें से कौन सी पहली सॉल्व करना, पहली सॉल्व करेंगे हम, एक नंबर की लाइन पे जो है पहली की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी. ये क्या कर रहे हो आप, सिक्वेंशियली जा रहे हो ना. करेक्ट. तो जब सिक्वेंशियली आप यहाँ पे जाते हो तो आप एरर्स सॉल्व कर लेते हो, सभी के सभी एरर्स निकल जाएगी. ठीक है. फिर से रन करोगे, रन हो जाएगा. ठीक. बट अगर आपका लाइन्स ऑफ कोड, ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है 20 लाइन का, वो अगर 10,000 लाइन का कोड अगर है, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू कि 10,000 लाइन के कोड में अगर 1,000 लाइन टोटल्स, 1,000 ही बोल रहा हूँ मैं, 9,000 जो लाइन्स आपने लिखी है वो सही है पूरी की पूरी, मगर 1,000 लाइन्स ऐसी है जिसमें कुछ ना कुछ एरर्स है, और वो आपकी स्क्रीन पे अगर आ गई, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, एक एक लाइन कैसे मैनेज करोगे, उसमें से कौन सी एरर निकालोगे पहले. ठीक है. सो दैट रिक्वायर्स सम मच मोर टाइम. सो इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द डिबगिंग. डिबगिंग क्या करता है, 10,000 लाइन्स का कोड है ना, चलो ठीक है, पहले वो पहली लाइन से शुरुआत करेगा. अगर पहली लाइन 100 लाइन तक कोई भी एरर नहीं है और 101 लाइन पे एरर, ठीक है, 100 लाइन करेक्ट है ना, 101 पे एरर है, वहाँ पे वो रुक जाता है. पहले उसको रेक्टिफाई करो, वो रेक्टिफाई होगी, फिर 102 को चेक करना शुरू कर देगा वो, फिर से रिवर्क करने के बाद. ऐसे करते करते अगर वो 250 पे आ गया और 251 पे एरर आ गई आपकी, तो आपकी जो 250 लाइन्स है वो तो ऑटोमेटिकली चेक हो गई, उसमें जो भी एरर्स थे वो भी अपन ने वही के वही निकाल दी. ठीक है. तो इसको क्या बोला जाता है कि इट इज़ अ स्टेप वाइज, और कैन से दैट सीक्वेंस वाइज चेकिंग ऑफ एरर्स, एंड दैट विल रिड्यूसेस द टाइम. एट अ टाइम आपको इतनी सारी एरर्स अगर स्क्रीन पे दिख जाती है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सी एरर हमने पहले हैंडल करना, कौन सी एरर को आपने पहले सॉल्व करना या फिर रिजॉल्व करना. Instead of that, if you use the debugging, so it will check line by line errors, and if there is no error, it will show that the output. क्योंकि डिबगिंग के बाद आपको रन करना पड़ता है. So is it understood? Okay. So later on, ये इन्होंने क्या बोला है कि the Unix operating system, the file is created with the help of a text editor or either few commands that we can use. ठीक. तो ed, edit का जो एक शॉर्टकट है, ed फाइल नेम, आप ये दे सकते हो और उसके हिसाब से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो. विंडोज़ में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप नोटपैड में जाओ, वर्डपैड में जाओ, या फिर टेक्स्ट एडिटर में जाओ, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओ, यू कैन डायरेक्टली ओपन द फाइल, रीनेम इट और सेव एज, वो आप कर सकते हो. सो इफ़ द फाइल एग्जिस्ट बिफोर, अगर फाइल पहले से ही है तो इट इज़ लोडेड, वो लोड हो जाएगी. एंड इफ इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, द फाइल हैज़ टू क्रिएटेड सो दैट इट इज़ रेडी टू रिसीव द न्यू प्रोग्राम. अगर फाइल पहले से बनी हुई है, इन दैट केस वी डोंट हैव टू रिक्रिएट इट, वी जस्ट हैव टू लोड इट इनटू द कंप्यूटर और द सीपीयू. देन इफ एनी करेक्शन, जो हमने करेक्शन का पार्ट देखा था, सैम्पल प्रोग्राम, एडिट द प्रोग्राम, that correction in the program are done under the editor. The name of your system's editor may be different. Check your system manuals. तो उनका बोलना है कि एडिटर अलग अलग हो सकते हैं. टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, वर्ड एडिटर हो सकता है, या फिर टर्बो सी का एडिटर हो सकता है, या फिर मैं जो ऑनलाइन जीडीबी यूज़ करता हूँ उसका भी एडिटर हो सकता है.
So when the editing is over, the file is saved on the disk. It can be referenced anytime later by its file name. तो जैसे हमने ये जो फाइल लिखी हुई है इसका फिलहाल क्या है, अनटाइटल्ड दिखा रहा है सबसे ऊपर. इज इट विजिबल? अनटाइटल्ड नोटपैड विजिबल है ये. तो उसके पहले एक स्टार है, स्टार अनटाइटल्ड डैश नोटपैड. सो व्हाट द इंडिकेशन ऑफ स्टार? दिस फाइल इज नॉट एट सेव्ड. अगर मैं इसको सेव करता हूँ sum.c, ठीक है, फाइल फॉर्मेट है, इसमें ऑल अगर फाइल्स करता हूँ और डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ तो क्या हो जाएगा, sum.c आ गया यहाँ पे और वो जो स्टार था वो चला गया. ठीक है. So it means that when we save the particular files, that will be loaded into the system, right? Then when the editing is over, the file is saved on the disk and it can be referenced anytime later by its file name. अब मुझे पता है कि sum नाम की एक फाइल जो है मैंने बनाई है, प्रोग्राम मैंने बनाया है, उसको आप उसमें सर्च कर सकते हो ऑन अ डेस्कटॉप और इन अ वन सॉफ्टवेयर ऑल्सो. जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं सी प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है टर्बो सी, ठीक, उसमें भी आप उसको सेव कर सकते हो. देन द प्रोग्राम दैट इज एंटर्ड इनटू द फाइल इज नोन एज अ सोर्स प्रोग्राम. इसको हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम. स्टार्टिंग में जो फ्लो चार्ट में हमने देखा था दैट वाज अ सेम सोर्स प्रोग्राम सिंस इट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम. अब इसको सोर्स इसलिए बोला जाता है कि जो भी आपने उसमें कमांड्स लिखी हुई है दैट वाज द इनिशियल कमांड्स. जो भी आपने उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है वो इनिशियल्स कमांड है, स्टार्टिंग है. तो स्टार्टिंग यानी क्या रहता है, सोर्स रहता है. और जब वो फाइनल आउटपुट के पहुंच जाता है, आउटपुट जनरेट कर देता है, दैट इज नथिंग बट द डेस्टिनेशन, राइट. सो इट इज रिप्रेजेंटेड और इट इज कॉल्ड एज अ सोर्स प्रोग्राम. आफ्टर दैट वी विल हैव अ मेजर रोल ऑफ अ लिंकिंग एंड कंपाइलिंग. कंपाइलिंग कैसे होता है और लिंकिंग कैसे होता है दैट वी विल सी. लेट अस अज्यूम दैट the operating or let us assume that the source program has been created in a file named as, कोई भी फाइल का नेम दिया उन्होंने program1.c. now the program is ready for a compilation. The compilation command to achieve this task under the Unix. यहाँ पे वो बोल रहा है कंपाइलेशन के लिए यूनिक्स. विंडोज़ में अगर हम करते हैं तो डायरेक्टली कंपाइल नाम की एक टैब रहती है, बटन रहती है, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे और डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो कंपाइल हो जाएगा क्योंकि विंडोज़ GUI अच्छे से प्रोवाइड करता है इस रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनिक्स का कमांड बेस है और विंडोज़ का डायरेक्टली आपको बटन्स मिलेंगे, ठीक है. The source program instructions are now translated into a form that is suitable for execution by the computer. यानी इसका मतलब क्या है, तो उसका ऑब्जेक्ट कोड बनेगा. सोर्स कोड जो है, सोर्स प्रोग्राम जो है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा बाय द यूज़ ऑफ अ कंपाइलर. अगर उसमें एरर्स हैं, वो जो फ्लो चार्ट है वो थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए कि उसमें एक डायमंड शेप था, डायमंड शेप के ऊपर कंपाइलेशन था, डायमंड शेप के अंदर सिंटैक्स एरर थी और राइट हैंड साइड में यस और नीचे के साइड में नो था. तो यस अगर है मीन्स द एरर इज देयर और नो अगर है तो देयर इज नो एरर एंड देन इट विल जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड, राइट. द ट्रांसलेशन इज डन आफ्टर एग्जामिनिंग ईच इंस्ट्रक्शन फॉर इट्स करेक्टनेस. यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंटैक्स ये जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर चेकिंग, करेक्टनेस है ना, तो सिंटैक्स एरर को वहाँ पे चेक करेगा. इफ एवरी टाइम इट इज ऑल राइट मीन्स एरर अगर नहीं है then the compilation proceeds silently and translate the program is stored on another file which is which is known as a object code and it is indicated with the help of a .o. यानी इसके पहले .c लिखा था हमने जिसको हम बोलते हैं सोर्स कोड. अब जब उसको कंपाइल कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा
ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसको सिस्टम रिप्रेजेंट करती है .o के एक्सटेंशन से। तो प्रोग्राम 1.c सोर्स कोड दिया हमने, उसको कंपाइल करने के बाद उसका बना प्रोग्राम 1.o। लिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर अदर प्रोग्राम फाइल्स एंड फंक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम। अब जैसे ये जो sum.c मैंने प्रोग्राम लिखा था, अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हेडर फाइल है इसका मीनिंग, हेडर फाइल का जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए सिस्टम को कि इससे क्या होगा। तो सिस्टम लाइब्रेरी से वो डेटा फेच करेगा, हैश इंक्लूड stdio.h। इट इज़ अ प्री प्रोसेसर। हैश मीन्स बहुत बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हैश हैश हैश। इट इज़ अ प्री प्रोसेसर दैट विल टेल टू द stdio.h or that will tell to the compiler or the processor, we can say that। ये जो प्री प्रोसेसर है हैश, वो बताएगा प्रोसेसर को कि हैश इंक्लूड और stdio.h, ये जो stdio.h है ये हेडर फाइल है, ठीक है, इसको हमको इंक्लूड करना है। प्री प्रोसेसर यानी जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट होता है उसके पहले की चीज़, ठीक है। प्रो वर्जन बोलते हैं ना हम, कोई भी चीज़ अगर पहले लॉन्च होगी तो उसके पहले प्रोमो रहता है, राइट। ट्रेलर, ट्रेलर सबको पता है, पिक्चर या फिर मूवीज़ रिलीज होने के पहले, तो उसको प्रोमो भी बोलते हैं, पहला जो शो रहता है उसको प्रोमो बोलते हैं। तो लाइक दैट प्री प्रोसेसर will instruct, that hash will instruct to the processor that we have to include stdio.h header file into the program। ये समझ में आया सबको कि हैश का क्या मीनिंग है? यस, that hash, okay, that hash will tell the processor that we have to include the stdio.h into the program। now ये हो गया। अब उसके बाद void main। तो void का मीनिंग क्या है? void is nothing। void का मीनिंग क्या है? nothing, ठीक है। ये अगर हम गूगल करते हैं तो void का अगर मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग है nothing। और उसके बाद है मेन फंक्शन, ठीक है। अब मेन के सामने हम नथिंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। रिटर्न मीन्स क्या? तो अगर कोई डेटा ऐसा है कि जो इंटीजर डेटा टाइप का है और वो कुछ रिटर्न करने वाला है, रिटर्न मीन्स RETURN, रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू जैसे हम रिटर्न 0 लिखते हैं, यहाँ पे GDP, ऑनलाइन GDP जो है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि रिटर्न 0 लिखा होगा। क्यों? क्योंकि मेन के सामने हमने उसका एक डेटा टाइप यूज़ किया है, दैट वाज ए इंटीजर। सो व्हेनेवर देयर इज ए इंटीजर that will be used in front of a main, yes, no return value। so whenever we put int main, in that case it will return the integer value, and that's why we will put over here return 0। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ main लिखता हूँ, simple main, then there is no problem, it will execute। बट वार्निंग देगा वो, ठीक है। वार्निंग किसके रिलेटेड है कि आपने वो जो रिटर्न 0 लिख के रखा है उसका करना क्या है। तो इसका भी कुछ भी नहीं करना है हमको, तो हम इसको कमेंट दे सकते हैं और इसको रन करेंगे। एक्चुअली प्रिंटर में कुछ लिखा नहीं है हमने, तो आउटपुट आ रहा कि नहीं आ रहा पता नहीं चल रहा। ओके, वॉइड मेन लिखते हो या फिर सिंपली मेन लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटपुट विल बी जनरेटेड, राइट। बट इट इज़ अ प्रैक्टिस। Instead of writing a simple main, we can write a void main। That means strictly we are saying that your main function will not return any value। That is what a void main। और अगर नहीं लिखते हो तो भी वही मीनिंग रहता है उसका। मगर यहाँ पे अगर इंटीजर मेन लिखते हो तो इट मीन्स दैट योर इंटीजर फंक्शन और योर मेन फंक्शन विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न 0, राइट। देन
लिंकिंग जब हो जाता है, that linking process of putting together all the program files and the functions that are required by the program. So after linking, what will be generated? Executable object code will be generated. So for example, if the program is using exp function, ठीक है, ये कोई तो भी एक फंक्शन है exp, उसको आप एक्सपेंस बोल सकते हो, एक्सप्रेशन बोल सकते हो, कोई भी exp function, then the object code of this function should be brought from the math library. इसको एक्सपोनेंशियल बोला जाएगा क्योंकि ये मैथ लाइब्रेरी के रिलेटेड है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. So math library of the system and link to the main program under the Unix. The linking is automatically done if no errors are detected when the cc command is used. यहाँ पे वो cc कमांड यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास विंडोज़ पे बटन्स है, तो वी डोंट हैव टू लुक एट इन द कमांड सेक्शन पार्ट. ठीक है, कमांड हमको यूज़ नहीं करनी है क्योंकि हम यूनिक्स नहीं यूज़ करने वाले, हम लिनक्स भी यूज़ करते हैं, स्टिल वी हैव अ बटन्स, so no problem, right? So the for example जो उन्होंने बताया कि एक इसके जगह पे हम एक दूसरा ले सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल की जगह पे हम एरिया लेंगे, एरिया. तो जो एरिया है, एरिया नाम का जो फंक्शन है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस रहेगी, जो भी उसका कैलकुलेशंस रहेगा, पार्ट रहेगा, दैट शुड बी लोडेड इनटू द सिस्टम. अगर सिस्टम की लाइब्रेरी में एरिया डिफाइन नहीं है एज अ फंक्शन, देन वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर फंक्शन एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. दो टाइप्स के फंक्शन रहते हैं, एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और ये रहता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम सब रूटीन्स बोलते हैं. इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, so that we will see. But when we are talking about the area function, it is a user defined function that should be loaded into the system. Now if any mistake in the syntax or the semantics of the language are discovered, they are listed out and the compilation process ends right there. अगर किसी भी लाइन पे कुछ सिंटैक्टिकल या फिर सिमेंटिक मेथड एरर आती है, तो जैसे किसी का स्पेलिंग गलत है, प्रिंटफ का स्पेलिंग गलत हो गया, स्टूडियो का स्पेलिंग गलत हो गया, मेन का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक, दैट वाज अ सिमेंटिक्स और सिंटैक्टिकल मेथड एरर्स, so that will be stopped at that particular point. The error should be corrected in the source program with the help of the editor, and then a recompile or again compile will be done. So once we will compile, then it will execute with the help of a.out. ठीक है, out means output. कंपाइलेशन अगर आपका सक्सेसफुली हो गया है तो हम क्या यूज़ करते हैं, a.out ये कमांड यूज़ करते हैं यूनिक्स में, या फिर विंडोज़ में हम डायरेक्टली रन एज अ बटन यूज़ करते हैं और वो सिस्टम या फिर प्रोग्राम रन हो जाता है, एंड देन इट विल जनरेट द आउटपुट, राइट. अब ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम है, ये हमारे विंडोज़ के रिलेटेड नहीं है क्योंकि विंडोज़ में कमांड बेस ही नहीं है, डायरेक्टली रन होता है, रन हुआ तो आउटपुट आ जाता है, जो हमने यहाँ पे देखा है. यहाँ पे हम रन करते हो, रन करते से कंपाइल हो जाता है, कंपाइल करने के बाद इमीडिएटली आपको आउटपुट मिल जाता है. सो दैट इज क्वाइट इजी विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन that will be asked in the exam, then we have to write it down, the stages. First stage is creating the simple program, sample program, then that sample program will be executed. Second stage, compiling the program, then linking and then executed. Okay, so the 4 steps are there: creating the program, compiling the program, then linking the program and executing the program. CCLE, अगर शॉर्टकट में हमको ध्यान में रखना है तो CCLE, these are the 4 stages of a C life cycle, right? So for today's it is enough. We'll see the next question in next lecture, that what are subroutines. Okay, so up till now any